Now we will take up questions by our friends here. Okay? आज का टॉपिक है मैनेजिंग कमेटी के फॉल्सिफिकेशंस, गलत कामों के बारे में, फ्रॉड के बारे में, पैसा जो खाया पिया उसके वगैरह के बारे में, कैसे और क्या किया जा सकता है, उसके बारे में हमारे स्पीकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको आइडियाज देंगे। हमारे स्पीकर साहब एक बहुत बड़ी हस्ती है, हमारी सुरक्षा के काम में थे। वो रिटायर होने के पहले आप उनकी उम्र से अंदाज लगा सकते हैं कि उनको कितना जिंदगी का तजुर्बा है। उनका जिंदगी का तजुर्बा का एडवांटेज लीजिए, उस चीज का फायदा लीजिए, अपने में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर नोहा मैथ्यू। My question is, during our election time, the returning officer also termed me as a defaulter in the provisional list as well as the final list of voters, where I was not was already with the registrar. I just need to know because I have not given my nomination for the candidature. Can I file an FIR against the returning officer for terming me as a defaulter? Sir, once again I will repeat. Basically, during the election procedure, when the list was put, the provisional list, my name was put as a defaulter. But I had already paid the maintenance, only the disputed amount was not paid. And that too, my matter was ongoing in the registrar's place. So, the registrar has not termed me as a defaulter because society has not gone to the registrar under recovery procedure or in a dispute, they have not gone to the cooperative court also. So, can the returning officer declare me as a defaulter? And he has declared it because in both the list, in the provisional as well as the final list, it has been declared as a defaulter. So, can I file an FIR against the returning officer? देखिए नोहा जी, फाइलिंग एफआईआर तो वो तो एक मैक्सिमम आपने जो लेना था स्टेप वो हो जाएगा। तो रादर देन डूइंग दैट, मेरे सोचने के मुताबिक कि आपको ये रिप्रेजेंट करना चाहिए था डिप्टी रजिस्ट्रार के पास कि अंडर 152A अपील की सुविधा है कि भी मेरे को इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट में या फाइनल लिस्ट में डिफॉल्टर घोषित किया है, लेकिन मैं डिफॉल्टर नहीं हूं, तो उससे आदेश ले लेते तो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज डिस्प्यूटेड अमाउंट था, मेंटेनेंस वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, मेंटेनेंस अमाउंट यू बीन पेइंग, तो वो आपके हक में मेरे हिसाब से होना चाहिए था और आपका नाम वोटिंग में आना चाहिए था। ये तो एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा कि आप आरओ के ऊपर एफआईआर करें, और वो भी एक छोटा मुद्दा है इन अ सेंस के एफआईआर इतनी जल्दी होती भी नहीं है ऐसे छोटे मुद्दे के ऊपर कि भी मेरे को वोट देने का अधिकार मेरा वो छीन लिया गया। Okay, I had spoken to the registrar, but the registrar also said you put your nomination, he will consider that. But I was not ready to contest the election, so that was one drawback from my end. So I never proceeded under 152(2) what you have said. So I have nothing because defaulter has not been termed by the registrar, nor my payments are all up to my maintenance have been paid. Only the disputed amount has not been paid. So that's the reason I just asked whether FIR can be done. So what is the next step? Can I complain about the returning officer to the deputy registrar or to the election officer, somebody, election department? हाँ जी, आप कर सकते हैं, लेकिन वो उसका मेरे हिसाब से कुछ होने वाला है नहीं है। लेकिन हेमंत जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा और इसके बारे में अगर वो थोड़ी जानकारी देंगे तो मेहरबानी होगी। हेमंत जी। Mr. Matthew, you are termed as a defaulter not by a returning officer. You have been declared defaulter not by the returning officer. The defaulters list is prepared by the society and not by the returning officer. He is bound, legally bound, let us say, by the list prepared by the society. If you are aggrieved by it, you would have gone to the deputy registrar and said, I am not a defaulter under these circumstances. Here is my bill, here is my payment, etc. The DR
would have given instructions to the returning officer to incorporate your name in the final voters list or uh, contestants list. For your info, returning officer is a deemed government servant under 165. So an FIR against a deemed government servant requires some permission from an authority, which is not literally possible. So you have got no grievance against the returning officer, but you have a grievance against the society. Anyway, thank you, Mr. Matthew, for joining in. Thank you. Next question is by Mr. Kisan Bhosle. सर मुझे एक पूछना था एक्चुअली कमिटी पे एक 154B27 और 154B23 उसमें 100 रुपीज उनको चार्ज हुआ था, तो उन्होंने फिर इलेक्शन कंडक्ट किया तो 100 रुपीज भरा भी नहीं है, और उसका जब अर्जी छाननी का टाइम आया था उसी टाइम मैं ऑब्जेक्शन लिया कि इनको ये चीज हुआ है, तो रिटर्न ऑफिसर ने उनको छाननी में रिजेक्ट नहीं किया, तो उनको कंटिन्यू किया, और ऊपर से मैं उनके इसके लिए मैं 152A अपील में रजिस्ट्रार के पास किया 10 दिन के अंदर, तो रजिस्ट्रार ने अभी तक उसमें 10 दिन में जो एक्शन होना चाहिए था वो किया नहीं है, और ऊपर से जो रेसलिंग ऑफिसर था उन्होंने क्या किया कि फ्राइडे को इलेक्शन का जो छाननी था वो फ्राइडे को लिया ताकि 2 दिन छुट्टी मिले, और 3 दिन में वो अपील डालना था, तो इसका अभी आगे क्या हो सकता है? भोसले साहब, ऐसा है कि छुट्टी का दिन अपील पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार उसको कंटिन्यू नहीं करता। मानो अगर 2 दिन पब्लिक हॉलिडे है तो आपका अपील का पीरियड 2 दिन बढ़ जाता है। ये कोर्ट्स में भी लागू है, ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के पास भी लागू है, आप अपने अपील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और कोई प्रश्न है भोसले साहब? नहीं, लेकिन ये अपील अभी किया है, लेकिन ये जैसा कि सर ने बोला था कि अपील यदि मेरे को डिपोर्टर करके किया था तो चल सकता है, लेकिन अपील ऐसा भी कर सकते हैं क्या जो छाननी में उनको रिजेक्ट किया? किया ऐसा सकते हो, आप कर सकते हो। इलेक्शन के नॉमिनेशन, फाइनल नॉमिनेशन के लिस्ट के पहले आप जो मर्जी है अपील डाल सकते हो डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले अपील का अधिकार डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में है। इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद के दिन का अपील का अधिकार सेक्शन 91 में कोऑपरेटिव कोर्ट में है। फिर डिप्यूटी रजिस्ट्रार का रोल खत्म हो जाता है उसके अंदर। तो आप छोटी से छोटी चीज को भी लेके अपील डाल सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वो अपील लेकिन अभी 10 दिन में उनको क्लोज करना चाहिए, वो अभी तक किया नहीं, 10 दिन तो हो के गया है। वेल, साहब नहीं आए होंगे, एक बार फॉलो अप कर लो, देख लो क्या हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सुरेश सिंह राणा। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है, हमारी मैनेजिंग कमेटी ने कन्वेंस लेने के टाइम पे एक सो कॉल्ड एजेंट को अपॉइंट किया और उन्होंने उसको जो है 14 लाख रुपया दिया, जिसमें 10 लाख रुपया जो है वो चेक से दिया और 4 लाख रुपया जो है वो कैश में दिया। और उन्होंने कोई ऐसा मतलब टेंडर जैसा या ऐसा कोई ऑफर नहीं मंगवाया और किसी लोगों से। बाद में सोसाइटी का रीऑडिट हुआ और 83 का इंक्वायरी हुआ, तो इन दोनों में जो है वो ऑडिटर ने और इंक्वायरी ऑफिसर ने बोला कि भाई दिस इज नॉट एज पर लॉ, और जो है देयर सीम्स टू बी ए फाइनेंशियल स्कैम इन द सोसाइटी। तो मैंने जो है डिप्यूटी रजिस्ट्रार को जो है मैंने लेटर लिखा कि भाई अंडर सेक्शन 81(5)(b) FIR शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट दिस मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स। तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने जो है बोला कि भाई अभी 88 का इंक्वायरी चल रहा है, तो और दूसरा उसने बोला कि भाई जो ऑडिटर है उसने हमसे परमिशन नहीं लिया कि भाई ही डिड नॉट आस्क मी टू फाइल FIR अगेंस्ट द मैनेजिंग कमेटी। तो अंडर दी circumstances it is not proper to file FIR right now.
तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं ये जो लेटर है इसके अगेंस्ट मैं ज्वाइंट रजिस्ट्रार डिविजनल रजिस्ट्रार के पास जाके फिर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और क्या मैं प्राइवेटली पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर के लिए लिख सकता हूँ? साहब, जो मेरा मानना है वो ये है कि जो भी सबसे पहले तो जब किसी को भी अपॉइंट करते हैं खर्चे के लिए फ्रॉम द सोसाइटी फंड, तो जी वो डीम कन्वेंस के लिए आपको एडवोकेट हायर करना है या कोई एक्सपर्ट हायर करना है, तो जी नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ 3 quotations शुड बी देयर. इट शुड बी अ कॉम्पिटिटिव बिड. ओके उसको बिड को नॉर्मली सर्वसाधारण मीटिंग में अप्रूव होना चाहिए, और Right, sir. जितना भी अमाउंट आपको देना है वो उसमें अप्रूव होना चाहिए. तो Correct. इसमें यही इसीलिए जो है कि जो करप्शन का या पैसे के दुरुपयोग का इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि जी. आप कैश में भी कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो Correct. ये मेरे मानने के मुताबिक ये तो गलत है कि जो 4 उन्होंने कैश दिया है और उसका कोई हिसाब नहीं है, तो इसीलिए जी. के अंडर वो इट हैज कम इनटू स्क्रूटनी एंड उन्होंने बोला है कि ये गलत हुआ है. तो जी. अब बाकी जो आगे की जो एक्टिविटी है मेरे जी. हिसाब से तो एक ये भी हो सकती है कि रिकवरी भी हो सकती है अंडर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अंडर 88. That inquiry is also on, sir. Now 88 का inquiry भी चल रहा है. इंक्वायरी विल रिकमेंड आफ्टर दैट कि भी इसका क्या करना है. तो रिकवरी भी हो सकती है वो 4 लाख की अगर वो जो कैश दिया है. ये मेरा मानना है. मैं हेमंत सर को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा इसमें योगदान. जी हेमंत सर. Yes, sir. The pendency of the 88 proceedings, yes sir. you can always file a private criminal complaint in the magistrate court. That is not a problem. सर उसमें कोर्ट का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके 88 का रिक्वायरी हो जाए फिर आ जाइए. आपने Okay, अगर sir. खुद प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया तो एविडेंसेस लाना, डॉक्यूमेंट्स लाना, मैटर को लीड करना वगैरह वो सब आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी. ओके सर. तो सर पहले मेरे को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी पड़ेगी या डायरेक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ेगा? अब पुलिस स्टेशन में कोशिश करिए एफआईआर करने की. पुलिस वाला बोलेगा Okay. कि 88 का इंक्वायरी पूरा हो जाने दीजिए, फिर हम आगे करते हैं. ओके और सर. अगर वो पुलिस वाला नहीं एफआईआर लेता है तो फिर आप अपना प्राइवेट मजिस्ट्रेट कोर्ट में चले जाइए और लोकल Okay. एडवोकेट के थ्रू वहां पे फाइल कर दीजिए. इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल. ओके सर. तो another thing is that, documents, if you do not have any documents, if you do not have any evidence, then you cannot file any. Okay, Mr. Rana. Our Okay, sir. next question is by Mr. Prasad Kalamkar. sir. Mr. Prasad Kalamkar. Thank you, Mr. sir. Prasad Hello, Kalamkar. hello, sir. Yes, sir. So my question is, उपनिबंधक कार्यालय में केस फाइल किया था सोसाइटी के अगेंस्ट. बहुत सारे इसमें विषय थे, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट ना देना, मेंटेनेंस के रिसीट भी 2-3 साल के आसपास ना देना, और फिर जो बेसिक चीजें थी लॉकडाउन में वाईफाई का, तो वाईफाई के लिए भी मुझे प्रॉब्लम दे रहे थे ये लोग. तो ऐसे बहुत सारे विषय थे. तो अभी मेरा लास्ट दिसंबर में मेरा डेट एक्चुअली लास्ट हियरिंग हो चुका है और 1 महीने में रिजल्ट देंगे वो बोला था. तो लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है. सेकेंडरी थिंग कि अगर मुझे दूसरे कोर्ट में जाना है तो फॉर एग्जांपल मुझे पूरा बैंक स्टेटमेंट चाहिए सोसाइटी के अकाउंट का, तो क्या वो मुझे मिल सकता है? और अगर हियरिंग मुझे अगर जो केस फाइल किया था मैंने, अगर उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अभी 2 महीने होने को आए हैं, तो फिर मैं वो कैसे मतलब प्राप्त कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन है. तो उपनिबंधक कार्यालय को मैंने इसके लिए मेल भी भेजा है, लेकिन वो लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे. प्रसाद साहब, इसका बेसिकली ये है कि जो आपने कंप्लेंट डाला है रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में, उसका अगर हियरिंग वगैरह हो गया है और उन्होंने बोला 1 महीने में हम आपको आदेश देंगे, तो उचित यही रहेगा कि आप वो आदेश की इंतजार करिए, उनको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दीजिए, क्योंकि इसका अगर आपके हक में वो आदेश आता है
तो फिर आपके लिए आगे कंप्लेंट करना जो है वो भी आसान हो जाता है। तो इसलिए आप उसी की इंतजार करके जो उन्होंने फाइनल देते हैं वो आपको आदेश को उसके हिसाब से ही नेक्स्ट स्टेप करिए। और जो आपको सोसाइटी के अकाउंट के बारे में बात है, आप रिक्वेस्ट करिए सोसाइटी को, लिखित में दीजिए अंडर बाय लॉ 171 एंड पे सम मनी इन एडवांस एंड टेल देम कि भाई आप मेरे को अकाउंट चाहिए, और उनका ये आपका अधिकार है और उनको देना पड़ेगा। अच्छा, 154B8 के अंदर जो ये है, मैंने केस फाइल किया था, तो उसमें ये नहीं मिलेगा क्या? नहीं, 154B8 में आपने आपने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे, यानी जो नहीं मिले आपको? मैंने काफी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। हाँ, मैंने शेयर सर्टिफिकेट मांगा था और कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी मांगे थे, क्योंकि मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा था। यहाँ तक कि मेंटेनेंस का रिसिप्ट भी नहीं मिल रहा था 3 साल तक। तो मैंने फिर सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ मिले ही नहीं, ऐसा है। तो अभी वो केस का अभी मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो ये कौन सी सेक्शन के अंडर आपने कंप्लेंट डाली है, जो डिप्टी रजिस्ट्रार को डाली है? 154 उपनिबंधक कार्यालय में 2 केसेस फाइल किए थे, 154B8 एंड 675। या तो वो प्रोविजन है बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए, जैसे मैंने आपको अपने लेक्चर में या अपने उसमें बताया था आपको कि उसके बाद में जॉइंट रजिस्ट्रार को या डिप्टी रजिस्ट्रार को अंडर 154B27(1) के तहत उनको देना चाहिए, और अगर नहीं देते तो तब भी अंडर 2 देना चाहिए। लेकिन अगर तभी भी कुछ नहीं होता तो आपके पास वो सुविधा है कि आप सेक्शन 146 के तहत आप जो है वो जॉइंट रजिस्ट्रार को कंप्लेंट डाल सकते हैं। लेकिन आफ्टर यू गेट दी आदेश फ्रॉम डिप्टी रजिस्ट्रार टू प्रोसिक्यूट देम फॉर नॉट गिविंग यू द डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया कि मेरे को वो प्राप्त हुआ अंडर 148(3), मेरे को जॉइंट रजिस्ट्रार ने प्रोसिक्यूट आदेश मिला मेरे को, तो वो आप कर सकते हैं। I would request Mr. Mohammed Afzal to talk for a few minutes on these issues. Mr. Mohammed Afzal, please. आई डोंट नो, जो मैंने पिछले बार अभी बात की थी, सब लोग ने सुना कि नहीं, आई रियली डोंट नो। कुलदीप जी? नहीं साहब, आपका we lost you actually, we didn't hear anything. आई एम श्योर कि कुलदीप जी के साथ में बहुत लंबे अरसे तक बैटल चला है, एंड आई थिंक सो इट्स स्टिल गोइंग ऑन। ओके, अब कैसा है कि जितनी भी सोसाइटीज हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ईगो इशू। अगर मैनेजिंग कमेटी ईगो इशू को साइड में रख दे तो 99.9% जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो कंप्लेंट्स जाती है वो जाना बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम विद द मैनेजिंग कमेटी इज, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये जो हमेशा ये कहते हैं कि भाई इट इज अ वॉलंटरी सर्विसेज दैट वी आर ऑफरिंग, आई से इट्स नो, इट्स नॉट अ वॉलंटरी सर्विसेज। आप कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, आप लोगों को बोलते हैं कि भाई हमें वोट करिए, एंड ऑन डेमोक्रेटिकली यू आर इलेक्टेड, सो यू आर आंसरेबल टू एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन विद इन द सोसाइटी। सोसाइटी का, मैनेजिंग कमेटी का यही एक दनभेद है कि जो लोग उनके पक्ष में हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, और जो माइनॉरिटीज जो है, जो ऑब्जेक्शंस लेते हैं, वो खलनायक है। तो इट इज अ वेरी क्लियर कट डेफिनेशन एज फार एज द मैनेजिंग कमेटी इज कंसर्न। जो लोग पैसिव रहते हैं उनको लगता है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई अपना समस्या आ जाए तो दे आर गोइंग टू फेस द सेम म्यूजिक। कुलदीप जी ने आरटीआई के बारे में बताया, आज काफी हद तक आरटीआई को लेके इट हैज बिकम डाइल्यूटेड। जब आप ये चीज मैनेजिंग कमेटी को भी मालूम है, ये चीज डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी मालूम है, ये सारे पब्लिक अथॉरिटीज को मालूम है, इसीलिए क्योंकि जो पेनल्टी जो लगाई जानी चाहिए वो लगाई नहीं जाती है 90% ऑफ द केसेस, जिसके वजह से पीआईओस को लिवरेज मिलता है, उनका साहस बढ़ता है, और वो
आपको इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर देते हैं। तो क्या हो जाता है जब आप आरटीआई फाइल करते हैं, फर्स्ट अपील में जाते हैं, उसका भी कोई महत्व नहीं रहा, उनकी भी कोई जवाबदारी नहीं रहती है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की। जब आप सेकेंड अपील में जाते हैं, आज के दौर के हिसाब से कम 2 साल जाते हैं आपके हियरिंग को आने के लिए, और वो 2 साल के अंदर अगर वहां से भी आपको समाधान नहीं मिलता है, द ओनली रेमेडी दैट इज देयर विथ यू इज यू हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट। अगर आप 91 के तहत अगर आप कोऑपरेटिव कोर्ट में अगर आप अप्रोच करते हैं तो उसकी भी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है। क्यों कि 16 साल से मैं एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। आज 16 साल हो गए, अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है। इट इज अ वेरी ओपन एंड शट केस। गवर्नमेंट ने गैजेट निकाला था कि नॉन ऑक्यूपेशन चार्जेस शुड बी नॉट मोर देन 10% ऑफ द सर्विस चार्ज। फिर भी लोग धड़ाके से मैनेजिंग कमेटी लागू कर रही थी, ले भी रही थी, और ये एक सिंगल पॉइंट को लेके जहां पे आपके बिल्स हैं, आपने जो पेमेंट किया, आपके रिसीट्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी कोऑपरेटिव कोर्ट में 16 साल लग गए हैं और आज भी वो केस आज भी मैं अटेंड कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि वी ऑल नो वेरी वेल कि द पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। कोर्ट्स आप जानते हैं कि बरसों निकल जाते हैं, और यही सब चीजों के कारण मैनेजिंग कमेटी इज हैविंग अ अपर हैंड। वो जानते हैं कि भाई उनके जेब से पैसे जाने नहीं वाले हैं। जब तक आप वो सेकंड इश्यू हो जाता है कि भाई यू कॉन्टेस्ट के भाई आपने हमें कैसे चार्ज किया लीगल फीस, बट इनिशियली तो यही होता है कि सारे मेंबर के पैसे से वो लड़ते हैं, और जो कंप्लेनेंट है वो अपने जेब से खर्चा करता है, उसका पैसे भी जाते हैं, टाइम, मनी, एनर्जी इज ऑल पुट एट कॉस्ट, एंड स्टिल द रिजल्ट्स आर एट ए डिस्टेंस। तो मैं समझता हूँ कि कुलदीप जी ने जो कहा है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे यही स्थिति है हर सोसाइटी में, पूरे हिंदुस्तान में। और इसी तरीके से जो हाई हैंडेडनेस जो है मैनेजिंग कमेटी का, वो ऐसा है कि वो चलते आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, अनलेस वी मेंबर्स यूनाइट टुगेदर एंड वी फाइट इट आउट। देखिए, वी ऑलवेज से कि द जनरल बॉडी इज सुप्रीम, बट द जनरल बॉडी कैन नॉट make or pass an illegal resolution. So no rules are above the act. तो मेरे ख्याल से अगर कोई गलत रेजोल्यूशन भी पास होता है तो उसके खिलाफ भी आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ जा सकते हैं। Secondly, you have an alternative remedy which is the consumer court, which is much faster, and you can approach the consumer court and get some relief from them. Yeah, over to Hemant ji. थैंक यू मिस्टर अफजल मोहम्मद। अफजल मोहम्मद के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता दें कि ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट, लगभग 40 साल के ऊपर का तजुर्बा है। ही इज ऑल्सो ऑन बोर्ड ऑफ द बीएमसी एडवाइजरी कमिटी। अगर आप फ्री प्रेस जर्नल पढ़ते होंगे तो 2 दिन पहले मोहम्मद साहब का एक आर्टिकल छपा था, मोहम्मद साहब का फोटो भी आया था उसके अंदर, बहुत बड़ा आर्टिकल था, and he did comment lot of it on for public purposes. I thank Mr. Afzal Mohammed for joining in today. आप साथ में बने रहिए अफजल साहब। Okay, we will take up next question by Mr. M.H. Kapadia. Good evening. Can you hear me? Yes, please. One short question, please go ahead. Yes, please. I had made a complaint in 1919. The deputy registrar kept on giving dates, arguments took place. It ended in October 20. After that, he said, I am not giving the order because I have to give a notice to the MC members under section 78. वो भी दिया. And he gave them 1 month's time. Nobody came, nobody represented. A lawyer came without a wakalatnama, yet he gave another date. And he says, I can keep on giving dates. Now, how many dates can a deputy registrar keep on giving and not even allow the arguments to happen and no order is passed?
सर मैं तो इसके जवाब में यही बोल सकता हूँ कि आपको यू हैव टू रेज द लेवल एंड I think there is a provision for any government service to act within a certain specified time. If he doesn't do that, you can under the Central Government Employees Act or something like that, you can make a report to the higher authorities. बाकी तो अफजल साहब ने क्लियर कर ही दिया है कि कितने जूते घिसाने पड़ते हैं इसके लिए, तो वही जो है वही एक चीज जो है वो मैनेजिंग कमेटी को मालूम है कि ये कितने जूते घसाएगा, हम भी देख लेते हैं, तो ये इसी का फायदा जो है वो मैनेजिंग कमेटी उठाती है. बट यू कैन रेज द लेवल, दैट्स माय टेक. To whom? After deputy registrar, to whom? Yeah, you make a complaint about joint deputy registrar that he is dragged on for such a long time under the government Central Government Employees Act or whatever. I am not very au fait with that. Afzal Saab, You can escalate it to the divisional joint registrar, और अगर वहां पर भी आपका समाधान नहीं हो सकता तो मल्होत्रा हाउस में भी आप वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. आई मीन you just need to move on, you know. ऐसा है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, and because the system is not working, that is where the problem lies. They are laughing at you. When you argue, Mr. they are laughing. Kapadia, the cooperative department has published what is called as Citizens Charter, नागरिकाचा सनद. नागरिकाचा सनद यानी Citizen Charter defines the period of work that the authority has to do, a specified period of work. तो इतने पीरियड के अंदर ये अथॉरिटी को काम करना है. पूरा अथॉरिटी काम नहीं करता तो आपका प्रश्न अभी ये आना चाहिए नेक्स्ट की मैं किसके पास जाऊं उसके विरोध में, तो टिपिकली आप लोक अदालत में चले जाइए. You can also try this right to public service act के तहत. So there are options. ऐसा नहीं है कि options नहीं है. There are a lot of options. Anyway, thank you, Mr. Kapadia, for joining in. Next question is by Mr. Tushar Dandavate. Mr. Tushar. Yes, sir. Good evening, sir, everybody. Good evening, sir. सर मेरा सवाल ये है, हमारे बिल्डिंग में जो बिल्डर था उसने बिल्डिंग बनाया और अपने ही फैमिली मेंबर को उसने फ्लैट बेचा. जब उसने बिल्डिंग बनाया तो उसने एमिनिटीज भी नहीं दी और उसके बाद उसने सोसाइटी के साथ एक एमओयू बनाया. अंडर द एमओयू बोला कि मैं वो सब फैसिलिटी देने के लिए तैयार हूँ. अभी उसने क्या किया सर, उनके रिलेटिव्स ने जिसको उन्होंने फ्लैट बेचा और जिसमें खुद बिल्डिंग कंपनी जो बिल्डर है वो भागीदार है, पार्टनरशिप है उसके, मतलब दोनों के नाम पे. फर्स्ट नाम उसने अपने रिलेटिव्स को बेचा और सेकंड नाम उसका है. और सर उन्होंने अभी अपील किया है टू सक्षम प्राधिकारी तथा सरकारी इनके लिए. तो सर मेरा ये कहना कि ये जो उन्होंने ये वहां पे अपील किया है सोसाइटी मेंबर के लिए, क्या हम उसके एज अ कमेटी मेंबर हम लोग उसकी दरखास्त है उसको कैंसिल कर सकते हैं क्या? बीइंग बिल्डर ने हमारे साथ एमओयू, सोसाइटी के साथ जो एमओयू बनाया उसका फुलफिलमेंट नहीं करने की वजह से, क्योंकि वो भी एक पार्टनर है वो फ्लैट में. तुषार साहब, आप प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दो मैनेजिंग कमेटी के विरोध में और इनको पार्टी बना दीजिए, बिल्डर को भी साथ में पार्टी बना दीजिए. आपके पास डॉक्यूमेंट है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यस सर, फ्रॉड वगैरह के सेक्शन के अंडर में प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट कर दीजिए. और अगर आप ये सोचेंगे कि कोई अधिकारी आपको इस चीज में हेल्प करेगा, आप वो गलत फहमी में बैठे रहेंगे, वक्त और पैसा बर्बाद ना करिए. आप प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट कर दीजिए, अधिकारी आपको इसमें आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. ओके सर. तो सर ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है? ठीक है सर. थैंक यू. मिस्टर इस्माइल शेख. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय इस्माइल शेख. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय एडवोकेट दोबले. नहीं, ये जो नॉमिनेशन का फॉर्म मैनेजिंग कमेटी के लिए भरा है तो एक आदमी जॉइंट मेंबर है अपने वाइफ के साथ, उनका नाम दूसरा है, तो वो इलेक्शन फॉर्म भरा है तो वो उसमें उसको जो फर्स्ट मेंबर कंसेंट लगता है साथ में भरना जरूरी है कि कभी भरना चाहिए?
नहीं, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट मेंबर के नाम पे या अगर जॉइंट है, दोनों का रजिस्टर हुआ है तो नाम दोनों का भी आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, कोई ऐसी दुविधा नहीं है। तो दूसरा आदमी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है क्या? सेकंड, और खड़ा होता है तो उसको पहले आदमी का वो जो एसओसी या कंसेंट जरूरी है क्या? हाँ सर, इसमें हमने काफी चर्चा भी की है ग्रुप में, और यही है कि उसको एसोसिएट मेंबर बनाना पड़ेगा, उसको अधिकार देना पड़ेगा। प्राइमरी मेंबर अगर उसको अधिकार देता है तो फिर वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, वोट भी कर सकता है। एसोसिएट तो अलग बात है, ये ऑलरेडी अभी दो नाम पे अगर डॉक्यूमेंट है तो वो सेकंड पर्सन इज एज इट इज। नहीं डोबले साहब, पहले जिसका पहला नाम रहता है वो मेन प्राइमरी मेंबर वही होता है। नहीं, हमें दूसरे की बात कर रहा हूँ, तो वो दूसरे को फिर जॉइंट मेंबर है ही ना दूसरा, तो उसको नहीं देखिए डोबले साहब, कैसा है कि आपका जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, बराबर है, वहां पे जो नाम होता है वो इंडेक्स 2 के हिसाब से ही आता है। बराबर है, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी मेंबर जैसा कुलदीप सिंह जी बता रहे हैं, ही इज द मेन पर्सन, एंड उनके साथ में जो जॉइंट होल्डर है, ओनर है कि भाई जिसका उन्होंने नॉमिनेशन भरा है, तो उनके लिए आपको स्पेसिफिक एक फॉर्म आता है, वो कंसेंट फॉर्म आपको सोसाइटी में जमा करना पड़ेगा कि आई hereby अलाउ गिव परमिशन फॉर हर टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड कंटेस्ट द इलेक्शन। अच्छा, वो फॉर्म के जो इलेक्शन का फॉर्म भरते हैं उसी के साथ देना जरूरी है जी। नॉमिनेशन आप भरते हैं तो उसके साथ में आपको वो प्राइमरी मेंबर का कंसेंट लेटर भी सबमिट करना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो इलेक्शन के दिन ऑब्जेक्शन देंगे तो वो इनवैलिड हो सकता है। हाँ देखिए, उनको कैसा होता है कि सोसाइटी में कैसा होता है कि जैसा कि वो कभी भी मतलब यानी आपको रिफ्यूज कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप बिफोर हैंड जब नॉमिनेशन भर रहे हैं तो उसके साथ में वो पर्टिकुलर कंसेंट, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट कंसेंट फॉर्म आप साइन प्राइमरी मेंबर से साइन करवा के। नहीं, यस यस 10 है, 10 Relax. Do not interrupt in between. is not there. Doble Sahab, we are short of time. We will take up next question by Mr. Ismail Sheikh. सॉरी सर, मैं एक्चुअली स्टार्ट नहीं किया था सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पैसेज में जो लोग है ना शू रैक रखते हैं या सामान रखते हैं, दैट इज इलीगल, एम आई राइट? एब्सोल्युटली इलीगल। तो अगर कोई भाईगिरी करता है सर, तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। anything that you keep in the common area, the common area belongs to the society, राइट? और कोई भी चीज कोई मेंबर रखता है तो इट अमाउंट्स टू इंक्रोचमेंट। ऐसे स्थिति में आप अगर पहले तो सोसाइटी को, कमिटी को बोलिए एक्शन लेने, उनको बोलिए रिमूव करने। अगर ऐसे नहीं रिमूव करते हैं, देन यू कैन फाइल अ कंप्लेन विद द बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, ओके, और वहां से वो नोटिस इमीडिएटली इशू कर सकते हैं। ओके, तो इट इज एन एनक्रोचमेंट एंड नोबडी इज अलाउड टू कीप एनीथिंग आउटसाइड इन द कॉमन एरिया। इस्माइल साहब, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो अफसल साहब ने बोला है कि ये एक फायर हैजर्ड भी है। ये जो है, ये फायर डिपार्टमेंट को भी आप रिपोर्ट करके उसको क्लियर करवा सकते हैं। You cannot keep anything because it's a fire hazard and बाधा डालता है फायर फाइटिंग में। करेक्ट, थैंक यू सर। Thank you. Next question is by Mr. Hamid. Mr. Hamid. सर, दो शॉर्ट क्वेश्चन है सर। एक फर्स्ट है कि मैंने 5 साल पहले में एग्जिस्टिंग फ्लैट मेरा खरीदा था, मतलब सोसाइटी ने, मैं जब एनओसी मांगा तो मुझे बोले कि आप पहले 50,000 रुपया ट्रांसफर फी भरिए तो ही हम आपको एनओसी देंगे। अब मेरा डील हो चुका था सर, मैंने टोकन अमाउंट मतलब नियरली 50% फ्लैट का दे चुका था, तो आई वॉज फोर्स टू डू इट। तो मैंने उनको दे दिया वो 50,000 रुपया, और उन्होंने मुझे 50,000 रुपए की रिसीट दी है ट्रांसफर फी बोल के। तो मैंने अभी उसके बाद 2-3 साल के बाद उनको रिक्वेस्ट करता रहा, सर ये गलत है गलत है, तो उन्होंने माना नहीं। तो अभी जाके मैंने सर ये जनवरी में मैंने जाके डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेन किया हूँ, बट एक कहीं पहले मेरे पढ़ने में आया था कि इट इज लैप्स्ड ऑफ 5 years। तो 5 साल के बाद अगर मैं
कंप्लेन करता हूं तो सर इज इट वैलिड? वो होल्ड कर मतलब रेप्यूटी रजिस्ट्रार मतलब एंटरटेन करेंगे उसको? आप ट्राई कर सकते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन डाल के, बट जहां तक 50,000 सबसे पहले तो अगर आपने खरीदा है फ्लैट के बेचा है? सर खरीदा है। ओके, खरीदा है ना, तो नॉर्मली वो जो आउटगोइंग मेंबर है उनसे वो ट्रांसफर फी लेते हैं, ठीक है? इट्स अ डिफरेंट सर वो तो वो मेरा डील जब डील हुआ, देखिए वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर कि वो 50-50 वो करें, बट लीगली स्पीकिंग मैनेजिंग कमेटी जो है वो आउटगोइंग मेंबर से ही डिमांड करती है. नाउ एज फार एज ट्रांसफर फी इज कंसर्न, 25,000 इज समथिंग विच इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, देयर इज अ नोटिफिकेशन फॉर दैट, ठीक है ना? तो उससे ज्यादा वो लेना इज टोटली इलीगल. जी सर. तो अगर उन्होंने लिया है तो वो यू कैन कॉन्टेस्ट दैट. सेकेंडली, आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं टू सेल द फ्लैट. तो बहुत करके क्या होता है कि आप अपने सेटिस्फैक्शन, बायर जो होता है, परचेसर जो होता है, वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इनकम्पेरेंस सर्टिफिकेट मांग सकता है, बट एनओसी कहां पर भी मतलब इन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यू कैन ऑलवेज टेक अप दिस इश्यू विद द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड मे बी ट्राई फाइलिंग डिले कंडोनेशन लेटर एप्लीकेशन. सर उसमें ऐसा हुआ था सर कि 50,000 रुपया जो हमारे डील हुआ था, तो उसने बोला था कि मैं ट्रांसफर फी नहीं दूंगा, तो मैंने फिर एग्री कर लिया. 50,000 मैंने चेक दिया हूँ सर, 50,000 रुपए का, और मेरे पास चेक की कॉपी है और उनकी रिसीट है 50,000 रिसीव्ड एज ट्रांसफर फी करके, और वो रिसीप्ट मेरे नाम पे है सर. तो इट्स अ क्लियर कट ओपन एंड शट केस ना, कि जब जहां पे आपको 25,000 रुपीज देना है, आपने 50 दिया है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेस्ट कि भाई आप मतलब यानी वो उनसे वापस ले लें. और अगर उन्होंने आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया फ्लैट, जी सर, वो ट्रांसफर वगैरह हो गया, वो कोई इश्यू नहीं है सर. आपने जो 50,000 दिया है मेंबरशिप ट्रांसफर के लिए, और आप अधिकारी के पास ना जाएं, वहां पे कोई उम्मीद ना करें. आप कोऑपरेटिव कोर्ट में पिटीशन डाल दीजिए, अपना ग्रीवेंस पिटीशन डाल दीजिए. कोऑपरेटिव कोर्ट में जिस दिन आपका ये ग्रीवेंस जागा है, 50,000 रुपए जिस दिन आपने दिया हुआ है, उस दिन से आप 6 साल के अंदर अंदर आप कोऑपरेटिव कोर्ट में मैटर डाल सकते हैं. उसके बाद भी डाल सकते हो. और कोऑपरेटिव कोर्ट में डालने के बाद में आप ये बोलिए कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मैंने जिस तारीख को ये 50,000 रुपए दिया आपको, उस तारीख से ही मुझे रिफंड किया जाए, along with the same rate of interest that the society is charging you. That is applicable under what is called as Sale of Goods Act, which is applicable in civil procedure courts, which also includes cooperative court also. तो आप ये माध्यम से आप कोऑपरेटिव कोर्ट जाइए, अपना समय, वक्त, पैसा, एनर्जी अधिकारियों के पास जाके हेल्प मांगने की जगह में या ग्रीवेंस रेज करने की जगह में आप कोऑपरेटिव कोर्ट जाइए. वक्त लगेगा लेकिन आपका काम पक्का हो जाएगा. एनीवे, थैंक यू मिस्टर हमीद फॉर ज्वाइनिंग दिस. वी विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर चंद्रकांत. मिस्टर चंद्रकांत प्लीज. चंद्रकांत सर, आप वहां पे अनम्यूट का बटन है, उसको आप क्लिक करिए सर. एक माइक्रोफोन का जो बटन है वहां पे. हाँ, अभी आ रहा है अभी. यस, प्लीज गो अहेड. तो मैंने गिफ्ट डीड दिया मेरे भाई के. आई हैव गिवन गिफ्ट डीड ऑफ माय फ्लैट टू माय ब्रदर सन. सो द सोसाइटी इज आस्किंग ट्रांसफर फी. सो वेदर इट इज एप्लीकेबल? कुलदीप सर, कोई एक्सपीरियंस इसमें? नहीं सर, आप बताओ. अफजल साहब. बायलॉज में फैमिली का डेफिनेशन क्लियरली दिया हुआ है. तो अगर आपने वो डेफिनेशन में अगर आप बैठते हैं, देन यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी एज ट्रांसफर फी. तो ये आप चेक कर लीजिए वेदर यू इज माय रियल ब्रदर सन. आई हैव गिफ्टेड हिम फ्लैट. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मतलब है ना, आप वो डेफिनेशन पढ़ लीजिए और उसमें आपके ब्रदर है, सिस्टर है, उनको दिया, या
तो वो सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड है. तो इफ यू फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ दैट डेफिनेशन ऑफ फैमिली, then you are not liable to pay, otherwise you have to pay. No, family includes children, wife and children only, no? Yes. नहीं, उसमें देखिए आजकल मेरे ख्याल से कुछ और भी है. Brother son comes under the family, a real brother. Not in the definition of society. ये आप बायलॉज में चेक कर लीजिए फैमिली के डेफिनेशन के अंदर. Okay sir, thank you. अफजल साहब एक सवाल. आपने वो लेटर ऑफ कंसोलेशन बोला, आपने क्या बोला सर? डिले कॉन्टिन्यूशन एप्लीकेशन. डिले कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन. डिले कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन. यस. उसमें कैसा है कि डिले हुआ तो आप उसका एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भाई किस वजह से डिले हुआ है. It's up to the court to accept it or reject it. ओके सर, ओके. चंद्रकांत साहब, आपके लिए ये जवाब है ये कि आपने कहा कि आपने फ्लैट भाई के बेटे को गिफ्ट किया हुआ है. Yes. It is actually it was an office. It was not a flat. It was an office. तो भाई के बेटे को बेटा आपका रियल ब्रदर्स सन. देखिए, अगर आपने भाई को गिफ्ट किया होता तो प्रीमियम नहीं लगता, लेकिन भाई को बेटा जो है वो बायलॉस के डेफिनेशन में नहीं आता है. इसके लिए आपको वो जो प्रीमियम लगाया हुआ है वो उन्होंने सही लगाया हुआ है. तो कितना लगाना चाहिए? 25,000 रुपए जो आपका टिपिकल प्रीमियम है 25. वही लगाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर रईस सैयद. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 78 के अंदर चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को रिमूव कर दिया है, डीबार कर दिया है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, मुझे ये जानना है. आपको बेसिकली अभी डिप्टी रजिस्ट्रार को बताना है कि ऐसे ऐसे इनको रिमूव किया हुआ है, और डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको बताएगा कि भाई आप कैसे कर सकते हो. नॉर्मली क्या होता है कि शुरू में जब कमेटी स्थापित होती है तो डिप्टी रजिस्ट्रार का रिप्रेजेंटेटिव आता है, उसके सामने ही जब नई कमेटी की इलेक्शन होती है जिसमें ऑफिस बेयरर्स, 3 ऑफिस बेयरर्स जो हैं, चेयरमैन, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी को नॉमिनेट किया जाता है, और अगर इलेक्शन हो तो इलेक्शन की जाती है. उसके बाद में जो भी प्रतिक्रिया है, उसके बाद में अगर आपको चेंज करना है तो आपको चिट्ठी लिखनी पड़ती है डीआर को. और एक मिनट सर, ये आई थिंक आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं. एग्जिस्टिंग कमिटी को कुछ मेंबरों ने डीबार करवा दिया है जो कोऑपरेटिव डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बाद. नहीं, अगर रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया है कि दे विल बी डीबार्ड फॉर 5 years. नो, इफ एक्चुअली आपका क्वेश्चन अधूरा था, तो इसलिए आप बोल रहे हैं अभी पहले आप बोल रहे थे रिमूव किया है. रिमूव जो है वो मतलब बेसिकली मतलब डीबार कर दिया है. हाँ, अगर डीबार किया है तो उसके बाद में फिर दे कैन नॉट फाइट इलेक्शन फॉर 5 years. वो तो उन्होंने कर दिया. वो पता है कि ऑर्डर में क्लियरली कि दे कैन नॉट रिकंटेस्ट, दे कैन नॉट नॉमिनेट, मतलब वो कुछ नहीं कर पाएंगे. दे विल बी जस्ट मेंबर. जो बैलेंस कमेटी है, मेरे हिसाब से जो बैलेंस कमेटी है उसके विद इन दोज मेंबर्स आप जो है वो दोबारा से डीआर के रिप्रेजेंटेटिव आके और इलेक्शन कर सकते हैं, चेयरमैन की, सेक्रेटरी की और ट्रेजरर की. और आपको अधिकार है 2 कोऑप मेंबर भी कर सकते हैं एंड स्पेशल डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं. इसके ऊपर हेमंत सर थोड़ा सा और करेक्शन करनी हो तो प्लीज. I feel कि पता नहीं, मतलब यानी ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार विल हैव टू टेक अ कॉल फॉर, क्योंकि क्या है जब दो लोग अपना डीबार हो जाते हैं तो वो वैकेंसी रह जाती है. तो यू हैव टू सी के मिनिमम कितने आपके फ्लैट्स हैं और कितने मेंबर्स का कोरम होना चाहिए, उसके हिसाब से देन डेप्यूटी रजिस्ट्रार विल कॉल फॉर मे बी फ्रेश इलेक्शन. Depending on the remaining managing committee members. Yeah, strength of the remaining managing committee members का अगर कोरम रह गया हुआ है तो
उसी के अंदर से आप ये ऑफिस बेयर्स अपॉइंट कर सकते हैं, नॉट इलेक्ट नहीं बोलते हैं उसको अपॉइंट कर सकते हैं। मैंने एमसी मीटिंग अगर 250 मेंबर के नीचे की सोसाइटी है और 250 मेंबर की अगर ऊपर की सोसाइटी है तो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, अथोराइज ऑफिसर को अपॉइंट करवा के डीआर के ऑफिस से आप चुन सकते हैं। अगर कोरम नहीं है, कोरम गिर गया इनको निकालने के बाद में, तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, या तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, या तो रजिस्ट्रार के परमिशन से आप नए मेंबर को कोऑप्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर्स एंड फुलफिल द स्ट्रेंथ ऑफ द कोरम। दिस इज द ओनली पॉसिबल वे, there are no other possible ways. Okay, we'll take up next question by Mr. Vikrant Jindal. Sir, can you hear me, sir? Yes. Sir, now regarding the dividing of the member, if a flat is in a joint membership, Mr. A and B are member. A is a primary member. He is a committee member. He has been debarred from the managing committee. Can now the B, who is a joint member, and upon the letter from the A that now he won't be representing the society, B will continue to represent the society, can continue to contest the elections or can be a committee member? Jindal sir, that would mean circumventing the law. That's exactly it, sir. है ना? तो प्राइमरी मेंबर तो डिबार हो गया। अब जो सेकेंडरी मेंबर है, मतलब ज्वाइंट है या एसोसिएट है या प्रोविजनल बनाया, जो भी कुछ बना, उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ से जनरेट होता है? वो तो प्राइमरी मेंबर से होता है। अब आप कहेंगे प्राइमरी मेंबर डिवाइड हो गया, तो चलो भाई आप दूसरा रास्ता लेते हैं बैकग्राउंड का और किसी को घुसर देते। तो आपका ये ट्रिक क्वेश्चन है सर। नहीं, एक जगह पे हुआ है, इसके लिए अनफॉर्चुनेटली वो मतलब पीपल हैव एक्सेप्टेड इट, तो दिस इज समथिंग व्हिच हैज सीन फ्रॉम माय द पर्सन हैज बिकम। एंड जिंदाल साहब, आप एडवोकेट हैं, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे एक क्राइटेरिया है बॉम्बे में खास करके, जिसको हम बोलते हैं चलता है। तो वो चलता है, बहुत वो चल जाता है जब तक कानून कचहरी के मामले में नहीं आता है। जैसे कुलदीप सर के मामले में कई चीजें चलता गया, वो चलती गई वगैरह वगैरह। और जब कुलदीप सर ने ये कहा कि भाई मैंने तो इतने साल देश की सेवा में दिया और मुझे ही परेशान कर रहे हो, मुझे ही हैरान परेशान कर रहे हो, वो एक चीज अलग हो गई। लेकिन उनको ये लगा कि ये चीज गलत हो रही है और गलत होने के वजह से उन्होंने कानून का सहारा लेना शुरू किया। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं कानून का सहारा लूंगा तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे या मुझे पीटने आ जाएंगे या मुझे सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे। एक जो फाइटर आदमी है, जो लड़ाकू जिसको कहते हैं, फाइटर लड़ाकू, या मैं उसको ये कहूंगा कि उस जिसको पता है कि मुझे अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, तो वो सोचता है कि अगर मैं हूं हेमंत अग्रवाल हूं तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे लड़ना है। अब कैसे लड़ना है वो मेरे ऊपर है, मैं जबान से लड़ लूं या कानून का आसरा लेके लड़ लूं या दोस्तों का सहारा लेके लड़ लूं या जो मर्जी आए, जो भी तौर तरीके से हम लड़ सकते हैं, लड़ना है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे लड़ने से कानून व्यवस्था, आपने अगर कुछ गलत किया हुआ है और कानून व्यवस्था से आपको मैं अगर ठीक कर सकता हूं तो मुझे लड़ना चाहिए। आपका क्या विचार है जिंदाल साहब इसमें? व्हाट डू यू थिंक? मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मैं लड़ना जानता हूं, मैं लड़ना जानता हूं और मुझे किसी ने गलत किया, मेरे ऊपर किसी ने गलत किया हुआ है, तो मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, ये प्रश्न। आज का जो वेबिनार का मुद्दा लगभग यही यहीं पे आके रुकता है कि मुझे लड़ना आता है, मुझे लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। आपने कुछ गलत किया हुआ है और आपको सुधारना जरूरी है। आप मीन सोसाइटी हो या मैनेजिंग कमेटी हो या जो भी हो, आपको सुधारना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं सुधारा अगर, तो आज कुलदीप सर को परेशान किया, उसके पहले अफजल साहब को परेशान किया, उसके साथ में रवि को परेशान किया, उसके पहले और किसी को परेशान किया। 4-5 घटना पिछली हो चुकी है। क्या इसका कोई अंत होने वाला है? क्योंकि आपको आदत लग गई है, शेर के मुंह में खून लग गया हुआ है परेशान करने का। तो आगे की जनरेशन को क्या आप परेशान करोगे या नहीं करोगे? मैं कहता हूं कि आप करोगे, क्योंकि आपके मुंह में खून लग गया हुआ है। आपको परेशान करने की फितरत हो गई है, आपको परेशान करने की, दूसरों को परेशान करने की आदत से लगी है। आपको उसमें एक सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है, परवर्टेड सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है, तो आप उस प्लेजर को आगे कंटिन्यू करना चाहोगे।
अरे उसको भी परेशान करते मजा आ रहा है, अरे उसको भी परेशान करते मजा आ रहा है। तो ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है, जो कि कुलदीप सर ने किया। अब प्रॉब्लम ये है कि कुलदीप सर ने किया, क्या हम लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या हम लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब ब्रॉड प्रश्न है। मैं आपका प्रश्न पहले आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ जिंदल साहब, आप मुझे इस चीज का उत्तर दीजिए, फिर मैं अफजल साहब के पास आता हूँ और लास्ट में कुलदीप सर के पास में आता हूँ। एक्चुअली करना चाहिए, लेकिन सोसाइटी में क्या अनफॉर्चुनेटली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, देयर इज अ ग्रुपिज्म एंड डिवीजन ऑफ वोट्स। एक पर्टिकुलर ग्रुप हो जाता है दूसरे ग्रुप को हैरेस करने के लिए, तो उस प्रकार वो बोलता है चलो भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हमने गलत किया है, हम आपको भी अलाउ कर देंगे, हम आपके काम में भी इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी में मैंने एक्सपीरियंस किया, मेंबर्स ऑफ आउटसाइडर्स को 5 दिन की कार पार्किंग परमिटेड है, 5 से ज्यादा हो तो फुल महीने का चार्ज लगेगा, लेकिन उनके पर्टिकुलर फ्रेंड्स वगैरह 20-20 दिन पास करते हैं, उनको चार्ज नहीं लगता। एंड बाय लॉ बोलो हम किसी दूसरे मेंबर के बारे में इंक्वायर नहीं कर सकते उसे कितना चार्जिंग लिया है। उसी प्रकार से पार्टीज वगैरह होती है, किसी से नहीं लेते हैं पैसा। अभी ये सब होते हैं ना, ये ग्रुपिज्म जो आ जाता है ना, पॉलिटिक्स आ जाता है कि अगर आप मेरी साइड में तो हम आपको बेनिफिट देंगे, उस हिसाब से ना फिर पब्लिक थोड़ी पीछे आ जाती है। अफजल साहब आपका कमेंट प्लीज, बहुत छोटे में, हमारा समय खत्म सा हो गया। हाँ, देखिए क्या है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो द ओनर्स ऑफ पूर्वी में एवरीथिंग फॉल्स ऑन यू। आज का माहौल ऐसा है कि हर सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे को चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर जो लोग चढ़ाते हैं वो कभी आगे नहीं आते लड़ने के लिए। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि डोंट गेट मतलब उनके उत्साहित ना हो जाए और डोंट गो ओवरबोर्ड, बिकॉज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ इंस्टिगेट करने ही के लिए बना हुआ है। आई मीन दैट इज माई व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, और उससे कोई समाधान होता नहीं है। लोग जो है जो सफर कर रहे हैं, जो इस चीज की ग्रेविटी को समझते हैं, वो अगर आगे बढ़ते हैं तो वो दैट विल बी ओके। बट अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर उनके राय और मशवरों से चलोगे तो आप बहुत बड़े नुकसान में रहोगे। तो यू हैव टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर यू वांट टू गो अहेड और यू डोंट वांट टू गो अहेड। Before we conclude our webinar today, I would ask Kuldeep sir to comment on the same. विक्रांत जी, हेमंत सर ने और अफजल सर ने बिल्कुल स्पष्ट कर ही दिया है, और ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप कितना, क्योंकि सच्चाई का रास्ता जो है वो कांटों भरा रास्ता होता है, और सच्चाई का रास्ता ही सबसे मुश्किल है। झूठ तो निकल जाता है, हवा में निकल जाता है और उसको तंग करने लग जाता है आपको। तो इसलिए आपके पास एविडेंस है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है और आप में इच्छा है, आप वो रखना चाहते हो कि भाई गलत जो है उसको ठीक करना चाहिए, तो फिर तो उचित यही रहेगा कि आप उसको लीगल एक्शन। और ग्रुपिज्म होता है, हर एक सोसाइटी में ग्रुपिज्म होता है, अलाइनमेंट्स होती हैं, लेकिन ये भी आप याद रखिए कि जब लड़ाई करनी पड़ती है तो आपको अकेले लड़ाई करनी पड़ती है। आपको सपोर्ट मिलती है आपके दोस्तों से, तो 2-4 दोस्त से आपके सपोर्ट करेंगे, लेकिन पैसा खर्च आपको करना पड़ेगा, भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। तो आपको ये तय करना है पहले कि भी आप वो उस डिफिकल्टी से या उस कष्ट से जूझना चाहते हो कि नहीं। दैट इज योर डिसीजन। मेरे ख्याल से आपने तो एक चीज सुनी भी होगी, मेरा कहना नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा हुआ है कि गुनाह करने वाला तो गुनहगार तो है ही है, गुनाह सहने वाला भी उससे बड़ा गुनहगार है। और अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरा मैनेजिंग कमेटी, मेरा सोसाइटी ये करे जा रहा है, वो करे जा रहा है, और मैं सहन करते जाऊं, तो प्रश्न ये उठता है कि सहन कितने समय करना है? 1 दिन करना है, 1 महीना करना है, या 1 साल करना है, या 10 साल करना है? क्या इसका अंत होने वाला है 10 साल के बाद में भी? अगर आप बहुत बड़ी ज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो, और सोचते हो चल ठीक है भाई ये सब सहन करके मैं तप कर लेता हूँ, तपस्वी बन जाता हूँ और उससे उभर के आऊंगा। मच्छर आज काट रहा है आपको शरीर में, आज अभी काट रहा है मच्छर 9:36 को, उस मच्छर को आज मारना जरूरी है। आज नहीं मारोगे तो आप बीमार पड़ने वाले हो, आप बीमार पड़ोगे, आप निकल जाओगे, आप निकलने के बाद में परेशानी, आप तो छुटकारा पालोगे
लेकिन आपके परिवार वाले सफर करेंगे। उनके उनके सेफ्टी के लिए, उनके रिश्तेदार, आपके रिश्तेदारों को सेफ्टी के लिए उस मच्छर को मारना आज जरूरी है, 10 साल के बाद में नहीं। सहन करना बेवकूफी है, मेरा ऐसा मानना है। हमारे साथ में एडवोकेट प्रकाश मोरे साहब भी जुड़े हुए हैं। मोरे साहेब, आप एक 2 मिनिटाचं कमेंट याच्यावर आणि देन वी विल कंक्लूड. हेमंत जी, कैन आई गुड इवनिंग टू ऑल. मोरे साहब को बोल लीजिए, फिर अफजल साहब आपके पास में आते हैं. नहीं सर, आप लोग सीनियर हो, आपने जो बोला है वो सही है. हर सोसाइटी में ग्रुप है और उसको फाइट करना एक आदमी को बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर वो गलत है तो उसको फाइट करना चाहिए. मैं तो इस मोड पे हूँ, या तो उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके उसका सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो फिर है बाकी रास्ते ओपन है. आई एम एग्री विथ यू ऑल. मोहम्मद साहब, लास्ट वर्ड्स बाय यू टुडे. मोहम्मद साहब, अफजल साहब. देखिए, इसमें एक फ्लिप साइड भी है. बिफोर यू गो फॉर अ कन्फ्रंटेशन, मैं ये समझता हूं कि अगर मैनेजिंग कमेटी कोई भी विषय को लेके अच्छा काम कर रही है तो आप उनको क्रेडिट दीजिए एंड ओपनली क्रेडिट दीजिए. और सेकंड चीज, अगर कोई पर्टिकुलर इश्यू है जिसपे आपको आपत्ति है तो आप उसको सही ढंग से सजेस्ट कर सकते हैं मैनेजिंग कमेटी को कि लीगली आप जो कर रहे हो वो गलत है और आपको ये रास्ता इख्तियार करना है. And only if they don't do it after that, then you can think about going ahead by the complaint route or by legal formalities. That's it. Okay, thank you everybody, and thank you Kuldeep sir for joining in and sharing your experiences. I am highly obliged to listen to a veteran like you. Thank you Kuldeep sir once again. Thank you all friends for joining and supporting today's webinar. Thank you, sir. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward.